الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. ہماری سوال و جواب کی آج یہ 8ویں نشست رمضان المبارک کے گزر جانے کے بعد آج دوبارہ شروع ہو رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان میں کی گئی عبادات، قیام اور قرآن کی تلاوت کو شرف قبولیت سے نوازے۔ رمضان کے بعد شوال کا مہینہ آتا ہے، اور اس مہینے میں شوال کے 6 روزوں کا ذکر ملتا ہے۔ تو اسی مناسبت سے آج کی جو نشست ہے یہ رکھی گئی ہے تاکہ شوال کے یہ جو 6 روزے ہیں ان کے مسائل ہمیں سمجھنے میں مدد ملے، کیونکہ ان کے بھی بے شمار مسائل ہو سکتے ہیں۔ تو ہمارے پاس کچھ سوالات جو ہے اس سلسلے میں آئے ہیں، تو ہم نے یہ نشست جو ہے سوال و جواب کی جو 8ویں اس کو ہم نے ماہ شوال کے 6 روزوں کے لیے مخصوص کیا ہے۔ تو شیخ فضیلت شیخ دکتور عبداللہ عبدالحمید حفظہ اللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو انشاءاللہ ہم اپنی نشست کا آغاز کرتے ہیں۔ شیخ حفظہ اللہ، پہلا سوال جو ہے ہمارا وہ یہ ہے کہ اگر کسی عورت کے روزے اس کے ایام مخصوصہ کی وجہ سے چھوٹ جائیں تو کیا وہ پہلے رمضان کے روزوں کی قضا دے یا پہلے شوال کے روزے رکھے؟ رہنمائی فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث مسلم شریف کی اور بھی اصحاب سنن نے اس حدیث کی تخریج کی ہے۔ حضرت ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان واتبعہ 6 من شوال کان کصیام الدہر، جس نے ماہ رمضان کے روزے رکھے اور پھر شوال میں 6 روزے رکھ لیے، گویا اس نے پورے سال کا روزہ رکھا۔ وہ اس طرح سے کہ نیکیاں 10 گنا بڑھ جاتی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، جو کوئی ایک نیکی کا کام کرے گا تو اسے اجر و ثواب کے لحاظ سے اس کا 10 گنا یعنی 10 نیکیوں کا ثواب ملے گا۔ تو ماہ رمضان کا روزہ چاہے ماہ رمضان 30 دن کا ہو یا 29 دن کا ہو، 1 مہینے کے روزے کا اجر و ثواب 10 مہینے کے روزوں کے اجر و ثواب کے برابر ہے، اور 6 دنوں کا روزہ 60 دنوں کے روزے کے برابر اجر و ثواب کے لحاظ سے، اور 60 دنوں میں 2 ماہ ہوتے ہیں۔ اس طرح سے رمضان کے 10 مہینے ہو گئے اور شوال کے 6 روزے 2 مہینے ہو گئے، گویا انسان نے پورے سال روزہ رکھا۔ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ جس خاتون کے ماہ رمضان میں کسی وجہ سے ایام مخصوصہ کو جیسے چھوٹ گئے ہوں تو پہلے وہ ماہ رمضان کے روزے رکھے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان، جس نے رمضان کے روزے رکھے اس کے بعد پھر شوال کے 6 روزے، گویا جس نے ماہ ایام مخصوصہ کی وجہ سے اپنے کچھ روزے چھوڑ دیے ہیں تو گویا اس نے رمضان کے پورے روزے نہیں رکھے، تو پہلے اسے ماہ رمضان کے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کرنی چاہیے، اور اس کے بعد ماہ شوال کے روزے رکھنے کی کوشش کرے۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ عورت بعض حالات کی وجہ سے یا تو شوال کا 6 روزہ رکھے یا ماہ رمضان کے روزوں کی قضا کرے، دونوں نہیں ہو سکتے۔
تو इस सूरत में उलमा ने गुंजाइश रखी है कि पहले माह शव्वाल के रोजे माह शव्वाल में रख ले, क्योंकि इसी एक महीने के अंदर उन 6 रोजों को रखना है, और उसके बाद आइंदा रमजान आने से पहले पहले बकिया माह रमजान के जो रोजे कदा हो गए हैं उनकी वो तकमील कर ले। एक दूसरा सवाल ये है, क्या माह रमजान के बाद शव्वाल के 6 रोजे मुसलसल तरतीब के साथ रखने चाहिए दरमियान में वक्फा दे सकते हैं? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया वातबाहु सित्तम मिन शव्वाल, और माह रमजान के बाद शव्वाल में 6 रोजे रखे। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने मुसलसल का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया है, इसके माने माह शव्वाल में दूसरी तारीख से लेकर 29 शव्वाल तक जब ये रोजे रखे जाएं, चाहे तरतीब से नागा दे के शुरू में या दरमियान शव्वाल में या आखिरी शव्वाल में, तो इंशाअल्लाह कोई हर्ज नहीं है, उसे अजर और सवाब पूरा मिलेगा। एक सवाल ये कि शव्वाल के 6 रोजों की हिकमत क्या है? क्या ये रोजे न रखने वाले गुनहगार होंगे? ये रोजा मुस्तहब रोजा मसनून रोजा है, जो बंदा ये रोजा न रखे तो कोई हर्ज नहीं। फर्ज रोजे तो सिर्फ रमजान ही के हैं। अब इनका फायदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ही बता दिया है। इनकी हिकमत क्या है कि जिसने माह रमजान के मुकम्मल रोजे रखने के बाद शव्वाल में भी 6 रोजे रख लिए, गोया उसने पूरे साल रोजा रखा। अगला सवाल है शेख के बाद लोग जो है शव्वाल के रोजों को बिदअत कहते हैं, इसके बारे में क्या सही है सुन्नत से रानवाई? समात शेख बिन बाज रहमतुल्लाह अलैह के पास इस तरह का सवाल आया था कि बाद लोग शव्वाल के रोजों को बिदअत कहते हैं और कहते हैं कि सिलसिले में जो हदीस आई हुई है वो दईफ है, तो इसके बारे में हमारा ख्याल क्या है? समात शेख बिन बाज ने जवाब में फरमाया था कि ये कौल बातिल है। जो आदमी ऐसी बात कह रहा है उसकी बात रद्द कर दी जाएगी, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सही तरीके पर साबित है शव्वाल के रोजों की मसनूनियत। चुनांचे इस सिलसिले में हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस हमने सुनाई है। ये हदीस सही मुस्लिम के अंदर है, हदीस नंबर 1164, और ये हदीस सुनन अबी दाऊद में भी है और हदीस नंबर 2433। ये सफ़ान इब्ने दूसरे सही इब्न ख़ुज़ैमा में भी 2114 नंबर हदीस है और सही इब्न हिब्बान में 3634 नंबर की हदीस है। इसके अलावा अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने और कई किताबों का हवाला दिया है, सुनन तिर्मिज़ी, इब्न माजा, मुसन्नफ इब्न अबी शैबा और तहावी की मुश्किल आसार और सुनन कुबरा अल-बहकी। उसके अलावा और भी हदीस की बाज़ किताबों में हदीस पाई जाती है। अल्लामा नासिरुद्दीन अलबानी ने इस हदीस को सही करार दिया है और मौजूदा दौर के एक आलिम उस्ताद डॉक्टर अबू अहमद मोहम्मद अब्दुल्लाह अल-आज़मी, उनकी किताब है अल-जामिउल कामिल फिल हदीस सही शामिल। उन्होंने इस हदीस का तज़किरा किया है और तकरीबन अल-जामिउल कामिल के चौथे हिस्से में सफ़ा 683 से उन्होंने शुरू किया है और कहा है कि यह हदीस सही है। इमाम मुस्लिम ने किताब सियाम में से बयान किया है। एक रावी साद इब्न सईद, इनके बारे में लोग कहते हैं कि इनका हाफिजा कमज़ोर था, मगर फरमाते हैं कि इनकी मुताबात कई सिक़ा रावियों ने किया है, सफ़ान इब्न सुलैम और इसी तरह से यहया इब्न सईद अल-अंसारी, ज़ैद इब्न असलम और अब्दुर्रब्बा इब्न सईद अल-अंसारी, ये तमाम लोग उमर इब्न साबित से रवायत करते हैं हदीस, और साद इब्न सईद ने भी उमर इब्न साबित से हदीस रवायत की है। जब ये हदीस साद इब्न सईद के अलावा और दूसरे लोगों ने भी सिक़ा लोगों ने
अमर इब्न साबित से रवायत की है, तो फिर इस हदीस के सही होने में कोई शुबा नहीं है। दूसरे एक और हदीस से इसकी तायद होती है। अर्थे सौबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादिम खास थे, कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सियाम रमदाना बे अश्र अशहुर, माह रमजान के रोजे 10 महीनों के रोजों के बराबर हैं, यानी अजर सवाब में। व सियाम सित्ता अय्याम बे शहरैन, और शव्वाल के 6 दिनों के रोजे 2 महीनों के रोजे के बराबर हैं। फज़ालिका सियाम सना, ये पूरे साल का रोजा हो गया, यानी रमजान और रमजान के बाद माह शव्वाल में 6 दिन। और ये हदीस सही है, इसे इब्न माजा ने रवायत किया है, हदीस नंबर 1715। मुस्नद इमाम अहमद में भी हदीस है 22,412 नंबर, सही इब्न खुज़ैमा में भी है 2,115, और सही इब्न हिब्बान में भी है 3,635, और मुश्किल आसार तहावी की मुश्किल आसार में भी है 2,348 नंबर हदीस है, और सुनन कुबरा लिल बहकी में भी ये हदीस है, और सब लोगों ने इस हदीस को सही कहा है। और इब्न माजा के अल्फाज ये हैं, मन सामा सित्तता अय्यामिन बादल फित्र, जिसने ईद उल फित्र के बाद 6 रोजे रखे, काना तमाम सना, तो उसने गोया पूरे साल का रोजा रखा। क्यों? मन जा बिल हसनती फलहु अशरु अमसालिहा, जिसने एक नाम की एक नेकी का काम किया तो उसको उस 10 नेकियों के बराबर अजर व सवाब मिलेगा। और एक दूसरी हदीस और भी है, जिसे बज़्ज़ार और कुछ लोगों ने रवायत किया है, और हैसमी ने मजमू ज़वाइद में भी इस हदीस को बज़्ज़ार के हवाले से नकल किया है, और कहा यह हदीस हसन है। हदीस के रावी हैं अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने माह रमज़ान के रोज़े रखे और फिर शव्वाल में 6 रोज़े रख लिए, गोया उसने पूरे साल का रोज़ा रखा। तो अगरचे साद इब्न सईद में कुछ दाव पाया जाता है, लेकिन बहुत सारे सिक़ात रावी उनकी तायीद कर रहे हैं। नीस दूसरी हदीसों से अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस की तायीद हो रही है, तो इसमें कोई शक नहीं, ये हदीस साबित है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। और माह शव्वाल के रोज़ों की मसनूनियत के बारे में कोई शुबा नहीं है। अलबत्ता एक शुबा ये बाकी रह जाता है, इमाम मालिक मुवत्ता के अंदर फरमाते हैं, वलम यबलुगनी फी ज़ालिका अहदुम मिन सलफ व इन्न अहलल इल्म यकरहून ज़ालिक। इमाम मालिक ने शव्वाल के रोज़ों को मकरूह करार दिया है। कहते हैं, मैंने अहले इल्म में से किसी से इस बारे में मैंने कुछ नहीं सुना है, और लोग डरते हैं कि कहीं बिदात ना हो, और ये कि रमज़ान के साथ उन रोज़ों को मिला दिया जाए जो रमज़ान में से नहीं हैं। अल्लामा इब्न अब्दुल बर रहमतुल्लाह अलैह, जो इमाम मालिक की किताबों के शारे हैं और उलमाए मालिकिया में बहुत बड़ा मकाम है, उन्होंने कहा है कि लम यबलुग मालिकन हदीस अबी अय्यूब अला अन्नहु हदीस मदनी। कहते हैं हालांकि ये इस हदीस के रावी जो हैं सब मदनी हैं, इसके बावजूद इमाम मालिक हालांकि मदीना के आलिम हैं, उन तक ये हदीस नहीं पहुंची है। दूसरी बात यह है, सारे हदीसों का इहाता इल्म का अहादा ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के खास बंदों को हासिल है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह आलिम मदीना हैं, बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, सब कुछ हैं, लेकिन सच्ची बात ये हदीस इमाम मालिक को नहीं पहुंची होगी, इसलिए इमाम मालिक के कौल इत्तिबा नहीं की जाएगी। बल्कि सही ये है कि माह रमज़ान के बाद शव्वाल के 6 रोज़े बिल्कुल मसनून हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सही तरीके से साबित हैं। और मैं अफसोस के साथ कहता हूँ कि जो लोग इन रोज़ों के बारे में कहते हैं कि ये साबित नहीं, हदीस ज़ईफ़ है, इससे कहीं कमतर ज़ईफ़ रवायतों को लेकर के वो बहुत सारे मसले बयान करते हैं और नहीं सोचते कि हदीस सही है कि सही नहीं है। इमाम मुस्लिम ने इस हदीस की तखरीज की है, और बहुत सारे मुहद्दिसीन ने इमाम मुस्लिम की ताईद की है।
اس لیے یہ حدیث بالکل صحیح ہے اور شوال کے 6 روزے بالکل مسنون ہیں. انسان چاہے تو مسلسل رکھے اور چاہے ناغہ دے کے رکھے، انشاءاللہ اسے اجر و ثواب پورا کا پورا حاصل ہوگا. صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. جزاک اللہ خیر شیخ و احسن الجزا. اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی نشست کا اختتام ہوتا ہے. آپ کے سامنے حاضر ہوں گے نئے سوال و جواب کے ساتھ ایک نئی نشست میں. جب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.